Hello, my dear students. Once again, I'm back. I'm very sure you might have enjoyed your winter break a lot and you might have completed all your pending works and you might have studied a lot. Now, we were on exercise 14.2. We have completed till question number 3. Let us start from question number 4. In question number 4, we are having just one identity, that is a square minus b square. Means every time you are going to get two squares in a difference. Whenever there are two squares in difference, the identity will be a square minus b square, and we will have to use a plus b and a minus b. Okay, so the recognition of the question is that there will be two squares in difference, and it may be applied more than one time in a question. Means that in one question only you will have to apply the same identity फॉर मोर देन वन टाइम. एक से ज्यादा बार आपको ये आइडेंटिटी एक क्वेश्चन में लगानी पड़ सकती है. सो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज a4 minus b4. Now you can see that the identity is in the square and here it is 4 power. So what I will have to do, I will have to convert it into the square. Square में convert कर लीजिए इसको. कैसे? a square का square minus b square का square. तो अब क्या पता चला कि a की जगह a स्क्वायर है और b की जगह b स्क्वायर. तो यहां पर a की जगह a स्क्वायर और b की जगह b स्क्वायर रख दीजिए. सो व्हाट आई विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो देयर इज नो आइडेंटिटी इन पॉजिटिव. whenever there are two squares in positives with positive sign, there is no identity. But when we are having a negative, yes, once again the same identity will be applied. एक बार फिर से यही आइडेंटिटी लगाई जाएगी. तो a square plus b square will remain like this, and for this I will write a square minus b square. Why I am writing like this? Because every time it will not remain in this form. बिल्कुल clear cut पता नहीं चलेगा, तो उसको लिखना पड़ेगा ऐसे. राइट नाउ इट वाज देयर. अगर हम नहीं लिखते तो चल जाता, लेकिन बाकी के क्वेश्चन में हमें ये लिखना पड़ेगा. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a plus b, a minus b. So this will be the factors of a to the power 4 minus b to the power 4, that is a square plus b square, a plus b, a minus b. I am very sure it is clear. 4 पावर था तो पहले मैंने उसको 2 पावर में कन्वर्ट किया. एवरी टाइम 4 पावर है, 8 पावर है, 12 पावर है, मुझे उसको 2 पावर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज द आइडेंटिटी इज देयर इन द 2 पावर ओनली. स्क्वायर्स में ही है आइडेंटिटी. नाउ सेम वे वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, that is p to the power 4 minus 81. Now p to the power 4 को मैं क्या लिखूंगा? p square का square, and 81 is the square of 9. 81 is the square of 9, so it will become p square minus 9. and you can see कि आइडेंटिटी तो लगी रही है because squares difference में है, squares difference में है. so p square plus 9. इसको पहले बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऑर्डर इज नॉट गोइंग टू मेक डिफरेंस. प्लस 9 पहले लिख लीजिए, माइनस 9 बाद में लिख दीजिए. नाउ इन प्लस 9, p स्क्वायर प्लस 9, you cannot apply any identity, but in p square minus 9 you will have to apply the same identity once again. And why this can be applied? Because here you can see the square and 9 is also the square of 3. 9 भी 3 का स्क्वायर होता है. तो मैं इसको क्या लिखूंगा? p का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और p square plus 9 is like this only. अब you can apply this identity once again. p plus 3, p minus 3, p square plus 9. So this way the solution of the second part is p plus 3, p minus 3 and p square plus 9. Okay, let us see the next question. Next question देखते हैं. अब in next question number is not there, but two variables, different variables are there, and in that you will have to apply the identity. What is the next question? The next question says x to the power 4 minus y to the power y plus z to the power 4. Okay, once again we can see that the power is 4 and difference is there, sign is negative in between.
x to the power 4 minus y plus z to the power 4. So x to the power 4 I am going to write x square to the whole square, and y to the power y plus z to the power 4 is also going to be written like this, square to the square, because identity is there in the square. As I told you, every time square ही करना पड़ेगा. अब एक ब्रैकेट में ये है a की वैल्यू और ये है b की वैल्यू, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b. चलो, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. सो हेयर व्हाट आई कैन डू, यहां क्या कर सकते हैं, आई विल हैव टू ओपन द होल स्क्वायर ऑफ वाई प्लस जेड. What I can do here, I will have to apply the identity once again, because here there are two squares in difference. So a plus b and a minus b. In this a plus b, a minus b, in this whole square is to be opened. So x square plus y square plus z square plus 2yz. This is the identity. This I have opened the identity of a plus b. a plus b का whole square खोल दिया यहाँ पर, और ये क्या हो गया, x plus y plus z और x minus y plus z. As you know that whenever there is minus sign outside the bracket, you will have to change the sign inside the bracket. So that I am going to do. No like terms are there, so it is going to remain like this. Like terms है नहीं, तो सब ऐसे का ऐसे ही रहेगा. x square plus y square plus z square plus 2yz. x plus y plus z और x minus y minus z. So this way, this is the solution of this question. What I have done, let me explain you once again. Since the power was 4 and the sign was negative in between, so I have converted it into two powers. Two powers से मैंने convert किया, x square का whole square minus y plus z square का whole square. अब I came to know identity, मुझे पता चली a square minus b square है. a की जगह x square लिखूंगा, b की जगह y plus z का square लिखूंगा. तो एक ब्रैकेट में a plus b, एक ब्रैकेट में a minus b. एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा ए प्लस बी. एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा ए माइनस बी. प्लस वाले में कोई आइडेंटिटी लगेगी नहीं, बट हेयर यू कैन सी द आइडेंटिटी ऑफ वाई प्लस जेड. वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल सकते हैं. सो वी हैव ओपन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz. और इसमें मैंने फिर से वही आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी, ए माइनस बी. इस बार ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू वाई प्लस जेड. सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, x minus y plus z. and whenever we are having minus sign, जब भी ब्रैकेट से बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज कर देते हैं. वो ही है इस ब्रैकेट में मैंने किया. बाकी कहीं भी मुझे लाइक टर्म्स नहीं मिली, तो टिल हियर इट इज द सेम. यहां पर मैंने साइन चेंज करके अपना आंसर लिख लिया. ठीक है. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो लाइक दैट. ऐसे ही है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी. द ओनली थिंग y प्लस जेड की जगह इस बार है x माइनस जेड, लेकिन उससे थोड़ा सा चेंज हमारे लाइक टर्म्स में मिलेगा. Otherwise, so the question is going to remain same. पूरा क्वेश्चन ऐसे ही रहने वाला है, but the only thing, only difference we will get is लास्ट में हमें कुछ like terms मिलेंगे. चलिए देखते हैं कि like terms हमें कहाँ मिल रहे हैं. Yes. The question is x to the power 4 minus x minus z to the power 4. x to the power 4, x minus z to the power 4. So merely the question is old. The only difference, earlier it was y plus z, now it is x minus z. So we will start in the same manner. वैसे ही शुरू करेंगे. x स्क्वायर का स्क्वायर, x minus z के स्क्वायर का स्क्वायर. एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस. x स्क्वायर प्लस x माइनस z का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर. नाउ हियर व्हाट आई कैन डू, आई विल हैव टू ओपन दिस आइडेंटिटी. ये आइडेंटिटी खोलनी है बस. ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz. दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर. और यहां मुझे क्या करना है, हियर आई विल हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी वंस अगेन. एक बार फिर से वही आइडेंटिटी. तो x प्लस x माइनस जेड एंड x माइनस
x माइनस जेड। अब क्या करें? यू कैन सी दैट समथिंग इज लाइक हियर, यहां पर कुछ लाइक मिला मुझे, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, और वाइल द साइन इज पॉजिटिव, अगर हम यहाँ ना भी लगाएं तो बात बन जाएगी, बिकॉज पॉजिटिव है तो कोई साइन लगाए मतलब नहीं लगाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट नेगेटिव है तो देन यू विल हैव टू पुट द ब्रैकेट. So why I have removed? Because x and x I am going to get positive with this like here, so 2x minus z, and here it will be x minus x plus z, and when you will see that x and x will be cancelled, you will get 2x square plus z square minus 2xz, 2x minus z and z. So this will be the answer for this. The only difference between third and fourth part is that in third part no terms were like, so this was the last step. But in fourth part question, in the answer we found some like terms, कुछ like terms भी मिली, उन like terms को हमने add कर दिया या cancel कर दिया, और जो बचा that is our answer. वो हो गया हमारा answer. So this was question number fourth part of question number 4. Okay. Let us see the fifth part. The fifth part is having the identity different from it. इससे थोड़ी सी different identity है fourth question की. तो how we will do that? Look, this is the fifth part. A to the power 4 minus 2a square b square plus b to the power 4. So you know that whenever we are having 2ab, so it is either the identity of a plus b or a minus b. So here I can see it is the identity of a minus b whole square. So कैसे? a square का whole square plus b square का whole square, और फिर 2 a की जगह a स्क्वायर और b की जगह b स्क्वायर. सो आई कम टू नो दैट इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये है बेसिकली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो नाउ यू कैन सी कि इन दिस यू कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी. यहां पर आइडेंटिटी फिर से लग रही है. सो व्हाट आई गॉट, a प्लस b, a माइनस b होल स्क्वायर तो पूरे के साथ था ही, तो आप लास्ट में इसको कर सकते हैं a प्लस b, a minus b का whole square. This result will come with a plus b and a minus b whole square. Okay, so this way this was question number 5. Now in question number this fifth part of question number 4. Now in question number 5 we are going to learn a new type of factorization. A new type of factorization. What is that new type? Till now we have used all the three identities, that is a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square, but we have not used the fourth identity, that is x plus a and x plus b. So now what will happen, the question given to you will be like this, x square plus a plus b x plus ab, और इनको भी ऐड करके लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन, इनको मल्टीप्लाई करके लिखा होगा, इनको ऐड करके, और आपको उसको ऐसे ब्रेक करना है, x प्लस ए और x प्लस बी में ब्रेक करना है. ठीक है, तो कैसे ब्रेक करेंगे वो हमें सीखना है. उस ब्रेकिंग के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. हमेशा हमें जो नंबर ए बी है, वी विल हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ इट. इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर है ना, और उन फैक्टर्स को ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि उनका सम या उनका डिफरेंस ए प्लस बी के इक्वल आ जाए. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये नहीं देता 5x वाला, ये 6x plus 8, x square plus 6x plus 8. So we are having this factor and we will have to write it in this form. ऐसे लिखना है इसको, ऐसे फैक्टर्स करने हैं.
और उसके लिए क्या करेंगे, वी विल हैव टू फैक्टराइज दिस 8। 8 के फैक्टर्स कीजिए, कैसे कि ऑल द फैक्टर्स जो होते हैं, तो 8 का पहला फैक्टर रहता है 1 इंटू 8, दूसरा फैक्टर होता है 2 इंटू 4, और तीसरा कोई फैक्टर होता ही नहीं। सो क्या 1 प्लस 8 9 है? नहीं। क्या 8 माइनस 1 1 प्लस 8 6 है? नहीं, 6 नहीं है। 8 माइनस 1 6 है? नहीं है। 4 प्लस 2 6 है? हाँ है। सो व्हाट आई विल डू, 6 की जगह मैं लिखूंगा 4 प्लस 2, 6 को मैं लिख दूंगा 4 प्लस 2। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x प्लस 8। अब क्या करें, x के साथ x 6 को मैंने क्या लिख दिया 4 प्लस 2। ये 4 प्लस 2 कहां से आया, 8 के फैक्टर से। 8 के कौन से फैक्टर लेने हैं, जिनका सम या डिफरेंस 6 के इक्वल होगा। तो अब क्या करें, x का मल्टीप्लाई कर दें अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। अब ये क्या, नाउ दिस इज नथिंग बट द टेकिंग कॉमन इन ग्रुप में जो हम कॉमन ले रहे थे वो बन गया। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म, x कॉमन, तो बचा क्या x, और क्या बचा प्लस 4। अब क्या कॉमन 2, क्या बचा x प्लस 4। अब यू कैन सी x प्लस 4 इज कॉमन अमंग्स्ट बोथ, दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 4 विल बी टेकन कॉमन एंड व्हाट लेफ्ट इज x प्लस 2। सो यू कैन सी दैट दीज फैक्टर्स आर लाइक दिस। इस तरह से ये फैक्टर्स हो गए, इस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 के फैक्टर हो गए x प्लस 4 x प्लस 2। कैसे किया, लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन, एक बार फिर से मैं बताता हूं। 8 के फैक्टर्स किए हमने, 8 के फैक्टर्स किए तो वो फैक्टर आए 1 इंटू 8 2 इंटू 4। 8 प्लस 1 6 नहीं आ रहा, 8 माइनस 1 भी 6 नहीं आ रहा, 4 प्लस 2 6 आ रहा है, 4 माइनस 2 6 नहीं आ रहा, तो हमने 4 प्लस 2। 99% केस में, 99% केस में एक ही फैक्टर मिलेगा, एक से ज्यादा फैक्टर नहीं मिलेंगे। लेकिन कुछ केसेस में एक से ज्यादा फैक्टर भी मिलते हैं, तो वहां हम धीरे धीरे हमें पहचान पता चल जाएगा कि हम कौन सा फैक्टर लेंगे, कौन सा फैक्टर नहीं लेंगे। ओके, 99% में तो आपको एक ही मिलेगा। तो 6 को मैंने लिखा 4 प्लस 2, 6 की जगह मैंने लिख लिया 4 प्लस 2x। अब x का मल्टीप्लाई अंदर, तो 4x प्लस 2x प्लस 8। सो एक्स स्क्वायर, अब x कॉमन, x प्लस 4 बचा, 2 कॉमन, x प्लस 4 बचा, x प्लस 4 कॉमन, x प्लस 2 बचा। So this way we got the factor of x square plus 6x plus 8 as x plus 4 x plus 2. Okay, I'm sure it is clear to you. ये बात समझ आई होगी आपको। एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, जिसमें आपको एक से ज्यादा फैक्टर मिलेंगे, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन सा फैक्टर है और कौन सा नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो 6 के फैक्टर करते हैं 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, दैट्स इट। और कोई फैक्टर ही नहीं रहा है। बट आप क्या देख रहे हैं कि 6 माइनस 1 भी 5 है और 3 प्लस 2 भी 5 है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा फैक्टर लेना है। जनरली इन द बिगनिंग यू विल नॉट कम टू नो, जो भी आपको अच्छा लगे दैट यू विल टेक, जो इन दोनों में से। तो मैं पहले 6 माइनस 1 ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x प्लस 6। व्हाट इज कॉमन, x कॉमन, बचा x प्लस 6। अब कॉमन हमेशा वो साइन आएगा जो यहां पर है, यहां है माइनस, तो हमें माइनस ही कॉमन लेना पड़ेगा, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, लेकिन माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस, और यहां हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। These two brackets are not same, and unless these two brackets are not same, our factors are wrong, our factors are not right. So we come to know here कि हमारे factors हैं गलत। So now we will have to take 3 plus 2। पॉजिटिव वाले में कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, जब तीनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता उसमें। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मुझे लिखना होगा 3 प्लस 2x प्लस 6, ये मिला मुझे, मल्टीप्लाई कर दिया x का अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, क्या कॉमन, x कॉमन, बचा x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, तो x प्लस 3। Here also I got x plus 3. Now x plus 3 is common, so x plus 2. So this way we come to know that this is the solution of
this type of question. Okay, now let me tell you the first question in your book. अब सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा कि साइन का डिफरेंस आएगा, कभी प्लस आएगा, कभी माइनस आएगा, कभी दोनों जगह माइनस, कभी एक जगह माइनस. अदरवाइज तो वर्किंग इज गोइंग टू रिमेन सेम. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8. अच्छा, ये तो हमने कर ही दिया. 6p प्लस 8 के फैक्टर किए और 4 और 2 आ गए थे. सो दैट इज डन. अब अगला क्वेश्चन क्या है? q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21. ओके, सो 21 के फैक्टर करते हैं. द फैक्टर्स आर 1 and 21, 3, 7 और कोई फैक्टर आ नहीं रहा. 21 प्लस 1 नहीं आ रहा, 21 माइनस 1 नहीं आ रहा, 3 प्लस 7 आ रहा है, 3 माइनस 7 नहीं आ रहा. सो q स्क्वायर को मैंने लिख लिया 7 प्लस 3q प्लस 21. Now what is this? You can see that sign is minus outside the bracket. So दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे. तो q स्क्वायर माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21. क्या कॉमन आया? q कॉमन आया, मिला हमें q माइनस 7. एज आई टोल्ड यू, साइन हमेशा वो कॉमन आएगा जो यहां पर है. माइनस का 3 कॉमन, इस माइनस कॉमन आने की वजह से इसका साइन प्लस और इसका साइन माइनस. q माइनस 7. अब q माइनस 7 और q minus 6. So these are the factors of it. I'm sure you can do it. Now let us see the last question for this. In the book we are having very less question based on it. So I will give you some extra question based over it, and then you will have to solve those. Okay. p square plus 6p माइनस 16. अब 16 के फैक्टर करते हैं. 16 इंटू 1, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4. तो 16 प्लस 1 6 नहीं होता, 16 माइनस 1 भी 6 नहीं है, 8 प्लस 2 6 नहीं है, बट 8 माइनस 2 6 है. 4 प्लस 4 6 नहीं है और 4 माइनस 4 भी 6 नहीं है. तो 8 माइनस 2, एक ही फैक्टर मिल रहा है. देखिए क्या करूं, 6 की जगह 8 माइनस 2p माइनस 16. सो आई गॉट p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16. कॉमन इज p प्लस 8 माइनस 2 कॉमन p प्लस 8. अब दोनों में से माइनस कॉमन आ गया तो p प्लस 8 हो गया. p प्लस 8 p minus 2. So this way you got the solution of all these questions, and with that this of our exercise is over. But for the question number 5 type question, I am going to give you as homework few more questions. So solve them, and if you are having any doubt you can ask those questions. Okay, till then complete your work.